Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radha Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radha Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Nithai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nithai Gaur Hari Bol Jai Jai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Jai Gurudev हरिनाम संकीर्तन की जय। तो ये जो भजन है ये सार्वभौम भट्टाचार्य करके बहुत बड़े भक्त थे बंगाल में 500 साल पहले, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण खुद हैं जो कलयुग में अवतरित होते हैं। तो उनका जो कांति है वो स्वर्ण कांति है, इसलिए उनको गौरांगा बोलते हैं, गौरहरि बोलते हैं। और वो अलग अलग प्रकार के पुष्प पहनते हैं और अलग अलग प्रकार के डांस करते हैं। तो इनका वहाँ पे वर्णन दिया गया है और ये कैसे इस पूरे भूतल में कृष्ण का प्रेम फैलाने के लिए आए हैं। तो आज उनका जन्म तिथि है कृष्ण भगवान या चैतन्य महाप्रभु का। तो इस उपलक्ष्य में बहुत सुंदर भजन है जो हम गा सकते हैं। तो हम लास्ट में एक आधा घंटा इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि उन्होंने कौन से कार्य किए, क्या क्या किया वगैरह वगैरह। तो इस आज की क्लास को आरंभ करते हैं हमारा मंगल चरण बोल के। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दूरबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो हम चर्चा कर रहे हैं चौथे अध्याय से। तो चौथा अध्याय जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में है। तो आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कि हम कौन है, भगवान कौन है और खासकर भगवान और हम में क्या नाता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हमने अब तक 24 श्लोक तक किया है। तो हम थोड़ा रिवीजन करेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो
ये जो ज्ञान है, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने अर्जुन ये ज्ञान विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है? सूर्यदेव हैं। इमं विवस्वते योगन प्रोक्तावन हम अव्ययम विवस्वानि मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकु अब्रवीत। यही ज्ञान मैंने बहुत बहुत साल पहले विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव को, और उसने ये मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसे करके ये ज्ञान सब परंपरा में आ रहा था, पर बीच में परंपरा टूट गई, बीच में कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके कारण ये भी जो श्रृंखला है, ये परंपरा है, टूट गई है, तो इसलिए मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। तो अर्जुन बोलता है, कृष्ण आप कैसे बोल रहे हो? आप और मैं सेम ही उम्र के हैं, सेम ही टाइम, लगभग 5-6 साल का सिर्फ फर्क है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि आपने सूर्यदेव को ही ज्ञान दिया था? क्योंकि सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ था। तो कृष्ण ने बोला कि तुमने बहुत जन्म लिए, मैंने बहुत जन्म लिए, तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे याद है सब कुछ। जैसे हम, कोई पिता होता है या माता होती है, बच्चे को कैसे बोलते हैं कि बचपन में तुमने क्या क्या कांड किए हमको पता है, तुमको याद नहीं है, तो वैसे बता रहे। तो उसके बाद फिर कृष्ण बोलते हैं कि जन्म कर्म च वे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता तत्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेतु स अर्जुन। कि मेरे जन्म और कार्यों को जो जानता है, वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता है, आध्यात्मिक जगत पहुंच जाता है। क्या कार्य करते हैं भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब कृष्ण भगवान आते हैं असुरों का नाश करने के लिए, भक्तों को वापस लेके जाने के लिए, और धर्म की संस्थापना करने के लिए, तो इसके लिए आते हैं। तो ये ज्ञान हमें रहना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद कृष्ण बोलते हैं कि मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग बर्ताव करता हूँ, सेम ही बर्ताव सबसे नहीं करता, है ना। जो नास्तिक होते हैं उनको मैं कुछ ज्ञान नहीं देता हूँ मेरे बारे में, जो आस्तिक होते हैं पर जिसमें कर्मकांड में होते हैं उनको मैं जो उनको चाहिए वो देता हूँ, जो वो डिजर्व करते हैं। ऐसे अलग अलगों को मैं अलग अलग दे देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मतलब जैसे कोई मुझसे पूजा करता है, मेरी तरफ आता है, वैसे ही मैं उससे बर्ताव करता हूँ। तो उसके बाद कोई बोल सकता है कि अरे भाई आप ऐसे करते हो तो सब लोग आपके पास क्यों नहीं आते? तो कृष्ण बोलते हैं कि भाई सबको जल्दी होती है, जैसे हमें सब चीज में जल्दी होती है। कोई हम लोग लाइन में खड़े नहीं होते हैं, सिग्नल पे खड़े नहीं होते, क्यों? क्योंकि जल्दी होती है हमको। तो वैसे ही सबको जब देवी देवताओं के पास आते हैं लोग, तो उनको घाई होती है कि अरे मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, तो उनको झट से चाहिए होता है। जैसे शादी होती है, झट मंगनी चट पट ब्याह, वैसे सबको जल्दी होती है। तो कृष्ण बोलता है मैं जल्दी में कोई चीज देता नहीं हूँ, मैं आराम से देता हूँ, जब तक उनका हृदय साफ ना हो तब तक मैं देता हूँ। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गणपति हो गए, शिव जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, ऐसे अलग दुर्गा जी हो गए, अलग अलग देवी को की पूजा करते हैं, और ये देवी देवता झट से देते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को कुछ पड़ी नहीं कि इनका क्या हो रहा है, बट कृष्ण को बहुत ख्याल है कि ये लोगों को मैं अगर कुछ दूंगा तो उसका दुरुपयोग तो नहीं करेंगे ये लोग, ये सोच के मैं उनको उनका शुद्ध होने के बाद ही देता हूँ। इसीलिए मेरे पास ज्यादा लोग नहीं आते हैं। जैसे डायमंड की शॉप में जिन्हें गिने चुने ही लोग जाते हैं, सोने के शॉप में भी थोड़े लोग जाते हैं। पर अगर कोई सस्ती चीज मिल रही है, या चोर बाजार हो, या $1 शॉप, या ₹100 का शॉप, तो उसमें बहुत सारा भीड़ होता है। डीमार्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारा भीड़ होता है, क्योंकि सस्ते में चीजें मिलती है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है मेरा, ये सस्ता नहीं है, ये बहुत बहुत रेयर है, इसीलिए सब लोग मेरे पास नहीं आते। तो उसके बाद कृष्ण बोलते हैं कि जो जो लोग करते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसीलिए मैंने वर्णाश्रम का सिस्टम बनाया है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। उसके उसके हिसाब से लोग अगर चलेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो फिर कृष्ण बस की बात बता रहे हैं कि ये जो कर्म है हम करते हैं, है ना, कर्म के बंधन में ना फंसे इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हम कर्म तो करते हैं, कर्म तो करना ही पड़ता है, खाना पीने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान 3 चीजों के बारे में बता रहे हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। ये 3 चीजों के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। अभी मुझे बताइए कि कर्म और अकर्म में क्या फर्क है? आप लोगों ने सुना है, अब तक 2-3 बार सुना है, तो कर्म और अकर्म में क्या फर्क है? कोई बोल सकता है? प्रभु जी, कर्म मीन्स जो शास्त्रों के हिसाब से किया जाता है, ओके, ओके। और और अकर्म? अकर्म मीन्स उल्टा, उसका उल्टा, जो शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों से नहीं, उसको अकर्म बोलते हैं। ओके, आपका एक आंसर यस, सही जो मान ये लीजिए, सारे 50। हाँ, गलत काम या जैसा जो भी है। ओके, आपका हरे 50% आंसर करेक्ट है। ओके। थैंक यू राधा माता जी। और कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अकर्म मीन्स
जो भी हम कर्म करते हैं उसे उसको कृष्ण को अर्पण करना। ओके, तो उससे क्या होता है? मतलब जैसे आपने पिछली बार बोला था कि हम जो हर काम करते हैं उसमें जैसे कंदिनी है, पेशिनी, उदकिनी, हाँ ये जो चीज में कुछ ना कुछ हमसे पाप होता रहता है। तो करेक्ट। हम प्रसन्न के प्रभु कृष्ण को देते हैं तो अकर्म हो जाता है, मतलब हमने कृष्ण को अर्पण किया। जैसे हम कुछ भी ओके, काम करते हैं वो भी कृष्ण को अर्पण करना है, तो तो हमें उसमें उसका पाप और पुण्य नहीं मिलता है, क्या मिलता है? अ, नहीं मतलब जैसे हमने कर्म किया जो शास्त्रों के अनुसार, जैसे हम पूजा कर रहे हैं तो पुण्य मिलता है, तो उसे हमें वापस म्हणजे पुण्याला परत पुण्य वापरण्यासाठी परत आपल्याला जन्म घ्यावा लागतो. ओके, हा, जर तर तेच कर्म आपण अकर्म म्हणजे कृष्णाला अर्पण केलं तर आपण त्या ह्याच्या जन्म आणि मृत्यूच्या बंधनात आम्ही अडकत नाही. हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। तो माता जी ने सही आंसर बताया। कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार, जैसे सत्यनारायण पूजा किया, गणपति का पूजा किया, या घर के लिए वास्तु शांत किया, और शास्त्रों में बताया कि झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोले, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए, तो ये शास्त्रों के अनुसार हो गया। पर उसमें क्या होता है, उसमें जो भी आप कर्म करेंगे उसको आपको अच्छा या बुरा रिएक्शन मिलेगा। अच्छे कर्म के लिए तो पुण्य मिलेगा। जैसे आज हमारा अपार्टमेंट में रक्तदान का शिविर है, तो लोग रक्तदान कर रहे हैं, तो उनको अच्छा कर्म मिलेगा। उनको कोई अगले जन्म में रक्त का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या उनको रक्तदान मिलेगा उनको भी। तो वैसे जो भी हम करते हैं अच्छे कर्म, उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है, पायस क्रेडिट मिलता है, वो हम जो अगले जन्म में यूज कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो विकर्म करते हैं। विकर्म मतलब जैसे राधा माता जी बताया कि कर्म से एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब पाप करना, चीटिंग करना, या जो 4 नियम बताए हैं उनको उनका पालन ना करना, ये सब चीजें विकर्म में आती हैं। तो फिर अकर्म क्या हो गया? जैसे फिर पद्मजावती ने बताया कि अकर्म मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण को अर्पण करके करेंगे, तो उसमें हमें ना ही पाप लगेगा ना ही पुण्य लगेगा। तो ऑब्वियसली उस कार्यों में पाप कृत्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने चोरी कर दिया और फिर अर्पण कर दिया भगवान को, एक प्राणी को काट दिया और उसको अर्पण कर दिया भगवान को, ऐसे नहीं चलेगा। भगवान ने उसके कुछ नियम बताए हैं, उसके अनुसार अगर हम अर्पण करेंगे, जो भी हम कार्य कर रहे हैं जो शास्त्रों के अनुसार है, कृष्ण को अर्पण करके करेंगे, तो उसका हमें पाप या पुण्य नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि हम ये जन्म मृत्यु के फेरे में नहीं फंसेंगे, जन्म मृत्यु के फेरे में नहीं फंसेंगे। श्रुणवतां सुगता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु ही अभद्राणी विधुनति सुहृदकथाम। ऐसे श्लोक आता है कि शास्त्रों में कि कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उनको अपने कर्म अर्पण करेंगे, तो हमारे हृदय में जो निर्ग्रंथि है, निर्ग्रंथि मतलब जो अटैचमेंट्स है अलग अलग, उन अटैचमेंट्स को हम नहीं अटैच रहेंगे, उससे हम निकल जाएंगे बाहर। तो इसीलिए भगवान को ये अर्पण करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हमने लास्ट सेक्शन में सुना पढ़ा था कि अपने कर्मों को, ये ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि कृष्ण भगवान सर्वोत्कृष्ट है, सबसे सुप्रीम है, उनके बाद सारे देवी देवता आते हैं। कई शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। शिव जी बोलते हैं, गणपति बोलते हैं, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। ऐसे सारे शास्त्र बोलते। कृष्ण अर्जुन खुद बोल रहा है 10वें चैप्टर में भगवद गीता में, आप देखेंगे 12वें श्लोक में बोल रहा है कि असित देवलह व्यासः, ऐसे सारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने बताया है, परम ब्रह्मा परम ध्यान परित्रम परमम भवान असितो देवलो व्यासः ना। ऐसे वो बता रहे हैं कि सारे जो अलग बड़े आचार्य उन्होंने बताया कि ये कृष्ण भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो अगर इतने बड़े बड़े आचार्य बोल रहे हैं तो हमने उनको मानना चाहिए, है ना। तो ये ज्ञान हो गया कि कृष्ण सबसे सुप्रीम है। और उनका जन्म कैसा होता है? जन्म कर्मच्चे में दिव्यम, दिव्य जन्म होता है उनका। जब उनका जन्म हुआ था उनके सर पे बाल थे, हमारे जन्म के बाद बाल नहीं थे हमारे, है ना। कुछ कुछ लोगों के होंगे, पर उनके शरीर में 4 बाहु थे, 4 हैंड्स थे, और उनके शरीर में आभूषण थे। कोई है जिसका जन्म के बाद बिल्कुल अपने आभूषण में आया कोई, और वो रोए नहीं, जैसे कोई बच्चा रोता है वो रोए नहीं। तो और उनसे शरीर से एकदम ऐसे ज्योति आ रही थी। और उनका जन्म जो है उनके इच्छा के अनुसार होता है। हमारा जन्म हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हमको जहाँ फेंका जाता है कौन सी फैमिली में, उस फैमिली में जाना पड़ता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे क्यों दिया है, मुझे और फैमिली में चाहिए, मुझे अंबानी के, बिरला, टाटा के फैमिली में जाना था, आपने मुझे क्यों उधर डाल दिया। नहीं बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, उसको फायदा नहीं। पर ऐसे भगवान के जन्म दिव्य हैं और उनके कर्म भी दिव्य हैं।
वो गोवर्धन जैसे पर्वत जो 28 माइल का उसका डायमीटर है उसको उठाते हैं। हम एक मोबाइल भी उठाएंगे 10-15 मिनट तक हाथ दुखेंगे हमें, पर भगवान 7 दिन 7 रात उठा रहे थे उसको। अगासुर नामक राक्षस को मार डाला, पूतना को मार डाला, कंस को मार डाला, इतने सारे राक्षसों को मार डाला, हम नहीं मार सकते। तो उनके कार्य और उनके जन्म एकदम अद्भुत है। ये जानेंगे, ये ज्ञान के साथ हमें क्या करना है, अपने कर्म करने हैं, ये उनको सब अर्पण करना है। कृष्ण बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षाय इष्यामि मा शुचो। सब कुछ त्याग कर दो, अपने सब जो मनोधर्म है तुम्हारे दिमाग में सब कुछ त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप तुम्हारे हर लूंगा, चिंता मत करो। और कृष्ण बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या वयच्छति। बोल रहे हैं कि सारे पत्र दो, मुझे कैसे भी पूजा कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा पैराफिनल चाहिए। पत्र अर्पण करो, पुष्प अर्पण करो, पानी अर्पण करो, फूल अर्पण करो, चलेगा। कृष्ण भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये ज्ञान के साथ हमें कर्म करना है, तब जाके हमारे कर्म अकर्म बन जाएंगे। तो हमने काफी विस्तार में चर्चा की, हम एक थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे कि ये कर्म करते करते अकर्म को कैसे करना है। क्योंकि हमें चाहिए कि हमें कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, कोई रिएक्शन आएगा तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा, और वापस जन्म लेना पड़ेगा तो क्या होगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वापस ये सारे चक्कर में फंसना पड़ेगा। जो चक्कर से हम बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें फंसना पड़ेगा। तो ये जहां पे लिखा हुआ है कि अकर्म कर्म में, इनएक्शन इन एक्शन, मतलब क्या, जब हम कर्म कर रहे हैं उसी में हमें रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें अकर्म करना है। कैसे करेंगे, तो ये उसके गुण हैं, जो व्यक्ति इसमें करता है उसके ये गुण हैं। क्या करता है वो इंद्रिय तृप्ति से अटैच नहीं है, मतलब खुद का एंजॉयमेंट नहीं देखता है। मैंने उदाहरण दिया था माँ का, माँ जब खाना बनाती है, प्रसादम बनाती है घर पे, तो वो ये नहीं देखती कि उसको क्या पसंद है ना। जैसे मेरी वाइफ को करेला पसंद है, पर हम में से तीनों को, बाकी तीनों को करेला इतना पसंद नहीं है, तो रोज रोज नहीं बनाती वो कि नहीं मुझे करेला पसंद है मैं रोज बनाऊंगी। तो रोज बनाएंगे तो कोई खाएगा नहीं। वैसे ही हमें कृष्ण भगवान के पसंद के लिए अपने कार्य करने, ना कि हमारे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। इसको बोलते हैं डिटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये पहला गुण है। दूसरा, जो भी हम काम करेंगे उसका जो भी फल आएगा उसकी अपेक्षा नहीं करनी है। कृष्ण भगवान खुद ही बोल रहे कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्ति कर्मण, कि भाई तुम कर्म करो, कर्म फल की अपेक्षा मत करो। क्यों भाई, फल की अपेक्षा क्यों ना करो, मैं तो कर्म कर रहा हूँ। क्योंकि तुम फल की अपेक्षा करोगे और फल नहीं मिलेगा तो नाराज हो जाओगे, मरो फल नहीं मिला, नहीं मिला। और अगर मिलेगा तो नाचोगे, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो इसीलिए तुम अपने फल की अपेक्षा मत करो, जो फल मिला उसमें आनंदी रहो। उसके बाद एवर सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट। तो जो ब्राह्मण होता है वो उसका गुण ऐसे होता है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम अजात शत्रु शांतव, शांत रहता, मन में उसका शांत रहता है। वो कभी भी ये नहीं बोलते कि अरे मुझे नहीं मिला वो नहीं मिला, जो भी मिला भगवान का खुश रहो। हमारे जीवन में जो भी मिल रहा है, हमारे पति पत्नी बच्चे फैमिली भाई माँ बाप पैसा सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। तो हमें कोई भी ये बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे मुझे ऐसा ही क्यों मिला है, नहीं, जो भी मिला उसमें शांति रखो, जितना भी मिला उसमें खुश रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट रहना चाहिए मतलब क्या कि हमें कोई भी चीज के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है और 3 गुणों के ऊपर जाना है ना, ऐसा। तो तीसरा गुण ये हो गया। चौथा, मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखना है। मन हमेशा बोलेगा अरे यार बहुत पढ़ाई कर लिया, अभी जाके थोड़ा टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो मन को और बुद्धि को काबू करना है। मन बोलेगा उसने मुझे ऐसा बोला था, मैं जाके उसको ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, काबू में रखना। फिर पांचवा, सबको लगता है कि मेरा है सब कुछ, मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरा पति मेरा है, मेरी पत्नी मेरी है, मेरा घर मेरा है। ये स्वामित्व की भावना को त्याग करना, क्योंकि हमारा कुछ है ही, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान हमारे मृत्यु के समय छीनने वाले हैं। तो इसलिए अभी से वो स्वामित्व की भावना को त्याग करना है कि मैं मेरा है ही नहीं, भगवान ने मुझे लीज पे दिया है, रेंट पे दिया है, उसको मुझे आगे चलाना है। जिंदगी में जितना चाहिए, जीवन में जितना हमारा शरीर और आत्मा को एक ठीक जगह रखना है उतना ही चीज एक्सपेक्ट करना है। सिंपल लिविंग हाई थिंक, ज्यादा चीजों को अक्यूमुलेट नहीं करना है कि मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, 4 गाड़ियां चाहिए, बहुत सारे घर चाहिए, स्विट्जरलैंड भी जाना है, न्यूजीलैंड भी जाना है, यूएस भी जाना है, यूके भी जाना है। नहीं, इतना कम से कम चीजों में अपना गुजारा कर सके उतना करना है। क्यों? क्योंकि बाकी का समय हमने भगवान की भक्ति में लगाना।
जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचते हैं, तो हम तो 24 घंटा नहीं कर सकते, पर जितना जितना हम कर सके उतना हमको बढ़ाना है, धीरे 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 बढ़ाना है ना। अभी आप 2 घंटा जप करते हैं कई कई भक्त, तो धीरे धीरे जप के साथ साथ आधा घंटा पढ़ाई करना है, आधा घंटा भगवान के बारे में सुनना है, ऐसा धीरे धीरे बढ़ाना है। जो लोग 1 2 4 माला कर रहे हैं उनको 16 माला तक आना है, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि 16 माला मतलब ऑप्टिमम है, इतना तो कम से कम करना चाहिए हमारा चित्त और हमारे चेतना को अच्छा रखने के लिए। 1 2 4 माला से बहुत मुश्किल होता है, 16 माला से भी मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि 16 माला करेंगे तो हमारा जो मन है तो शांत होता है, भगवान के चरणों में वो रहता है, अदरवाइज इधर उधर भटकता है। तो ये हो गया, हमारी इच्छाएं जो है कम से कम रखना है। उसके बाद संतुष्ट, हमेशा जो भी हमें मिला उसके लिए संतुष्ट, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई जॉब करता है तो 8 9 घंटे मेहनत करके जितना भी मिला संतुष्ट रहो, ज्यादा बड़े को एक्सपेक्ट मत करो। जैसे अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है उसके पास 6000 स्क्वायर फुट का घर है ना। 6000 स्क्वायर फुट मतलब बहुत बड़ा हो गया घर, फ्लैट है उसका, और वो भी 53rd फ्लोर पे है। तो कोई सोचता था अरे यार मेरा तो 1000 स्क्वायर फुट का घर है, इतना बड़ा घर मुझे भी चाहिए ताकि मैं उधर क्रिकेट खेल सकूं, मैं ये कर सकूं वो कर सकूं। ऐसी इच्छा करने की जरूरत नहीं। ऐसे साधु लोग बोलते हैं कि हमको सोने के लिए सिर्फ 10 बाय 10 का कमरा काफी, उससे बड़ा नहीं चाहिए। तो जितना आपको भगवान ने दिया उतने में संतुष्ट रहने का सीखना चाहिए। फिर उसके बाद द्वंद्वों से फ्री रहना चाहिए। द्वंद्व हमेशा रहने वाले हैं आपके जीवन में, सुख रहेंगे दुख रहेगा, अच्छे लोग रहेंगे बुरे लोग रहेंगे, हमारा मन भक्ति में लगेगा नहीं लगेगा, फिर भी भक्ति करनी है ना। कभी कभी हमको यश आएगा, कभी यश नहीं आएगा। कभी अभी जैसे गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ेगी, फिर कुछ दिनों में बारिश आएगी, फिर सर्दी आएगी, तो ये चलने ही वाला है। अभी कोरोना चल रहा है, कुछ दिनों में कोरोना निकल जाएगा। तो ऐसा द्वंद्व तो हमेशा होने वाला है, इस द्वंद्व के साथ हमें जीना है। द्वंद्व को बोला अरे इतनी गर्मी क्यों हो गई है, मुझे एसी चाहिए, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, नहीं, जितना है उतना में खुश रहो, स्टेडी रहना है। आपको यश मिले ना मिले शांत रहना। दूसरों से मत्सर नहीं करना है। मत्सर क्यों नहीं करना है? क्योंकि मत्सर से हम कोई परेशानी है ना। एनवी नहीं करना दूसरों का, अरे उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है, नहीं। भगवान के दया से जो हमको मिला उसमें खुश रहना है। मत्सर नहीं करेंगे तो भगवान को पसंद नहीं है ना। जैसे आपके अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे से मत्सर करता है तो आपको अच्छा लगेगा, बोलेगा अरे यार अपना ही तो बच्चा है, तेरा ही तो भाई है, तेरा ही बहन है, क्यों मत्सर करता है। वैसे ही भगवान को लगता है कि मेरे जा रहे जो बच्चे हैं उन्होंने दूसरों का मत्सर्य नहीं करना चाहिए। फिर अलग अलग गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कभी हम तमोगुण में रहते हैं, बोलते अरे ज्यादा सोना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए, ऐसा लगता है। तो उसको काबू में रखना है हमको, और बोलना है कि नहीं, भक्ति करनी है मुझे तो रोज सुबह उठ के मुझे 16 माला करना है, रोज आधा घंटा भगवद गीता पढ़ना है, रोज आधा घंटा भगवान के बारे में सुनना है, इतना तो मैं करूंगा ही। ऐसे मन को काबू में रखना है। ऐसे करते करते हम पूरी तरह से ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, आराम से स्थित हो जाएंगे, तब जाके हम समाधि में चले जाएंगे, तब हमारा जो कर्म है अकर्मा कहलाएगा। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो बहुत मुश्किल है, इतने सारे 12 क्वालिटीज बताएं, एक भी नहीं है हमने, कैसे करेंगे? धीरे धीरे आएगा सब कुछ, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। इसके पहले आप 1 साल पहले 2 साल पहले जब करते थे नहीं करते थे, सिर्फ मंदिर जाते थे, घंटे बजा के आते थे, अभी भगवद गीता पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, अभी पढ़ रहे हैं, तो वो भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। कोई भी चीज जल्दी नहीं आती है ना। आराम से धीरे धीरे सब कुछ आएगा। और हम एक दिन, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप अगर सिंसियरली करेंगे, हर हफ्ते भागवतम में आएंगे, भगवद गीता में आएंगे, रोज 16 माला जप करेंगे, रोज भगवद गीता पढ़ेंगे, रोज आधा घंटा सुनेंगे भगवान के बारे में, एक दिन गारंटेड आएगा जिस दिन आप लोग ये सारे गुण आप में मौजूद रहेंगे। सब शास्त्रों में लिखा गया है और आचार्यों के द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे गुण हम में आएंगे, पर हमें धैर्य रखना है। उत्साहात निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनत, रूप गोस्वामी बोलते हैं अपने एनओआई बुक में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि उत्साह होना चाहिए भक्ति में, उत्साह के साथ भक्ति करनी है, उसके साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु जी मैं 6 महीने से 16 माला कर रही हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है, धीरे 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 फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो हृदय में जो 6 प्रकार के अवगुण हैं, काम क्रोध मद मोह मत्सर, बहुत जन्मों से, लाखों जन्मों से पड़े हैं। धीरे धीरे ऐसे, जैसे आपके घर में कोई रूम है, उसको आपने बहुत दिनों से खोला ही नहीं, उसके घर रूम में इतना सारा मैल आ जाएगा, इतना सारा डर्ट आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा इतना कहाँ से आ गया, क्योंकि वो रोज थोड़ा 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 जमा होता है। वैसे हम इस भौतिक जगत में आए तब से ये धीरे 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 जमा हो रहा है,
उसको निकालने के लिए टाइम लगेगा, तो जल्दी मत कीजिए, पर सिंसियरली रोज 16 माला करने हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे उस तरफ आ जाएं, 1 माला 2 माला कर रहे हैं वो धीरे धीरे उस तरफ आ जाए। तो बोलेंगे प्रभु जी हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम निकालना पड़ेगा। देखो अच्छी चीज के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। बच्चे जब पढ़ाई करते 10वीं की 12वीं की तो टाइम निकालते, वो नहीं बोलते कि नहीं मैं तो रोज 2 घंटा टीवी देखूंगा या देखूंगी और फिर भी मैं पहला आऊंगा। मुश्किल। जिसको पहला आना है बोर्ड में उसको 12-14 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। अपने जो इंद्रिय तृप्ति है, टीवी देखना, मूवी देखना, गपशप लड़ाना, उसको त्याग देना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, आध्यात्मिक जगत पहुंचना है, तो वहां के गुण चाहिए ना। यहाँ के गुण लेके वहां पे नहीं जा सकते, है ना। वहां पे जैसे संस्कृत बोलते हैं तो थोड़ा बहुत तो संस्कृत पढ़ते आना चाहिए। वहां पे गुण है कि मत्सर्य नहीं है, तो मत्सर्य हमको त्याग देना चाहिए। वहां पे है कि जो भी मिला उसमें शांति रखते हैं वहां के लोग। तो वैसे हमको गुण धीरे धीरे प्रकट करने हैं। कैसे होंगे? जो हम कर रहे हैं, ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग। B फॉर बुक्स, भगवद गीता भागवतम रोज पढ़ना। C फॉर चैंटिंग, रोज 16 माला करना। D फॉर डाइट, D फॉर दर्शन, रोज भगवान के दर्शन करना, ऑनलाइन तो कर सकते हैं कम से कम। और D फॉर डाइट मतलब भगवान को रोज भोग चढ़ा के प्रसाद खाना। धीरे धीरे ये हम में गुण आएंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको, गारंटी लिख के देता हूँ आपको स्टैम्प पेपर पे, कि आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे, थोड़े ही साल में, थोड़े ही दिनों में इनमें से गुण आपके उसमें आ जाएंगे। कुछ सालों के बाद आप ही आओगे प्रभु जी आप सही बोल रहे होते, शुभ सही बोल रहे थे। 4-5 साल पहले मैं, मुझे यकीन है, अभी कुछ कुछ माताएं हैं इस प्रोग्राम में भी जो बोलते हैं कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं 1 माला भी करूंगे, और अभी 16 माला कर रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं। वो कभी सुबह 5:30 बजे उठ के उठे नहीं थे, पर अभी सुबह 5:30 जब उठ के वो जब सेशन में आते हैं, शुक्रवार फ्राइडे सैटरडे को, और जब करते हैं साथ में। तो ये मुमकिन है, कोई भी चीज इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। हमें सिर्फ इच्छा करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं भौतिक जगत में इच्छा करके। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। कृष्ण बोलते हैं कि तुमने इच्छा की कि तुमको अलग रहना है, आ गए इधर। तो ऐसे हमें प्रबल इच्छा करनी, एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर, कृष्णा मुझे वापस आना है और भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत मुझे आना है। इसके लिए मैं 16 माला करूंगी, रोज सुबह 5:30 बजे उठूंगी, रोज भगवद गीता पढ़ूंगा, रोज भागवतम पढ़ूंगा, सुनूंगा, आधा घंटा करना है मुझे, करना है तो करना है। तो टाइम अपने आप आएगा, टाइम आपके पास, भगवान आपको टाइम निकाल के दे देंगे। जब मैंने 15 साल पहले, 12 साल पहले जब चालू किया 2017 में, 7 में, तो 1 माला करता था मैं और 10 मिनट भगवद गीता पढ़ता था। तो एक सन्यासी ने एक दूसरे डिवोटी को बोला, ये यूके की बात है, कि आपने रोज 16 माला करने चाहिए। तो मैं उनकी तरफ देख रहा, बोलता अरे आपको तो काम नहीं भाई, पर हम जॉब करते हैं, 16 माला करने के लिए कहाँ से टाइम मिलेगा। ऐसे मैं तब सोचता था, और अभी मैं सोचता हूँ कि क्या मूर्ख था मैं। अपने आप टाइम निकलता है अगर भगवान के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो। आप करके देखिए, जो भी चीज आपको नहीं जम रहा है, स्पेशली आध्यात्मिक चीज, भौतिक चीजों में भगवान इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। आप बोलिए कि भगवान मुझे कल से आधा घंटा भगवद गीता रोज पढ़ना है, शांति में पढ़ना है, भगवान आपको टाइम निकाल के देंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना है कि भगवान है और भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे, और मैं ये सब गुण अपने में करके ही रहूंगा। तो अभी 23वें श्लोक में भगवान यज्ञ का मेंशन करते हैं, बोलते हैं कि यज्ञ बहुत जरूरी है। यज्ञ मतलब क्या? यज्ञ मतलब भगवान के लिए कोई चीज करना, उसको यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं कि वहां पे आग जलाएं, उसमें लकड़ी डालें, उसमें अलग अलग प्रकार घी डालें, चावल डालें, वो यज्ञ एक प्रकार हो गया। पर शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ मतलब भगवान की खुशी के लिए कोई भी कार्य करना मतलब यज्ञ होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भक्ति में अगर कोई रहेगा और अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देगा, मतलब एंजॉयमेंट टेंडेंसी को छोड़ देगा, धीरे धीरे उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है बाहर आएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी न हो, श्रवणादि शुद्ध चित्त कोरी में उदय। मतलब ये बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि हमारा जो मूल स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, ये हमारे हृदय में ही है। हमारे हृदय में है मतलब क्या? हमारे आत्मा में ऑलरेडी है वो। जैसे कोई बच्चा साइकिलिंग सीखता है, उस बच्चे को साइकिलिंग आता है, पर क्या है उसको प्रैक्टिस नहीं, इसीलिए तो वो सीख जाता है जल्दी। वो कहीं स्किल सीखने के लिए जाता है वो, बट सीख रहा है और उसको आ जाता है। वैसे ही हमारी भक्ति जो है हमारे हृदय में ऑलरेडी है, आत्मा के स्वरूप में। उसके ऊपर एक कवरिंग बना हुआ है, उसके ऊपर एक कवरिंग बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने ये ग्लासेस पहन लिया और ये ग्लासेस में येलो कलर है, पीले कलर का चश्मा पहन लिया मैंने, मुझे सब कुछ पीला पीला दिखेगा।
वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर ये कवरिंग बन गया है 6 अनर्थों का, काम क्रोध मद मोह मत्सर। इसके कारण हमको सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। यहाँ कोई अगर लड़का है उसको लड़की दिखती है तो उससे अरे मुझे एंजॉय करना है, लड़की है तो उसको लड़का दिखते है एंजॉय करने लगता है, कोई चीज दिखती है उसको एंजॉय करना। क्यों? क्योंकि ये कवरिंग के कारण। हम दूसरों से द्वेष करते हैं कवरिंग के कारण। तो जब हम यज्ञ करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो मूल स्वरूप है आत्मा का वो बाहर आएगा, धीरे 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 स्वरूप बाहर आएगा। और माया जो है, माया माया मतलब दुर्गा देवी है। माया मतलब और कोई नहीं, दुर्गा देवी क्या करती है, भ्रम में डालती है भक्तों को, लोगों को। क्यों भ्रम में डालती है? क्योंकि हमारी इच्छा थी, हमने इच्छा की थी कि हमें एंजॉय करना है, हमें कृष्ण वस्तु नहीं चाहिए, हमें कृष्ण को भूल जाना है, इसलिए हमको वो कवर करती है। और जितना हम प्रयत्न करते हैं कि नहीं नहीं मुझे कवरिंग से हटना है, बाहर निकलना है इससे, उतना माया क्या करती है, ज्यादा डालती है हमें। पर हम जब एंजॉय करने का सोचते हैं, इच्छा करते हैं कि मुझे एंजॉय करना है, मुझे मूवी देखना है, मुझे उधर घूमना है, तो माया हमारे ऊपर कंट्रोल लेती है। हा हा हा, तुझे घूमना है क्या, आजा आजा मेरे चंगुल में फंस जाएगा तू, ऐसा बोलती हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि इंद्र तृप्ति से दूर रहना है, एंजॉयमेंट टेंडेंसी से दूर रहना है। जैसे ही हम दूर रहेंगे, माया धीरे धीरे अपने चंगुल छोड़ देगी और हमारा मूल स्वरूप जो है बाहर आएगा। इसको बोलते यज्ञ। ये यज्ञ हमें सीखना है। ये यज्ञ अगर हम सीखेंगे, धीरे धीरे हमारा जो मूल स्वरूप है सच्चिदानंद, मतलब हम हमेशा आनंदी रहते हैं, हमेशा ज्ञानवान रहते हैं, हमेशा इटर्नल रहते हैं, नित्य रहते हैं। ये जो स्वरूप है बाहर अपने आप आएगा, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है और धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। तो अब अगले सेक्शन में जाएंगे हम लोग। तो यज्ञ जो होता है, यज्ञ करते जाएंगे, धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। जैसे भागवत में बोला गया है, वासुदेव सर्वमिति, नहीं सॉरी, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति करेंगे वासुदेव की, तो क्या मिलेगा, वैराग्य मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए ये अगर हम सैक्रिफाइस करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो क्या होगा, हमारा मूल स्वरूप बाहर आएगा और फिर हमें ज्ञान मिलेगा, जो मूल ज्ञान है। इसीलिए जो लोग सिर्फ भगवद गीता पढ़ते हैं और भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे कई लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं सिर्फ भगवद गीता पढ़ते हैं, और उनको पूछो कि भगवद गीता में क्या लिखा है, कुछ खास नहीं, और कृष्ण कुछ तो बड़बड़ कर रहे हैं। पर जो भक्त होता है उसको पता होता है कि नहीं, कृष्ण सबसे सुप्रीम है, जो बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समयता। तो मैं सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का दाता हूँ, सब कुछ मैंने बनाया है। तो इसीलिए ये ज्ञान सिर्फ भक्तों को आता है। ये यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करना, इसको बोलते हैं यज्ञ। तो अभी हम देखेंगे ये जो सेक्शन है 25 से 33 लेकर ये भगवान यहाँ पे यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो हम सिर्फ 5 श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी चर्चा करनी है। तो 5 श्लोक सिर्फ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानेंगे। तो ये 24वां श्लोक है, 25 पे चालू करेंगे हम। 24 तक हमने चर्चा की है ऑलरेडी। 25वां, दैवमेव परे यज्ञं योगिना पदुपासते ब्रह्मज्ञो परे यज्ञं यज्ञेहुपचायते। क्या बोल रहे हैं कि कोई योगी होते हैं वो यज्ञ करते हैं, किसका, देवी देवताओं का, उनको अलग अलग चीजें वो अर्पण करते हैं। और कोई होते हैं जो ब्रह्मन का यज्ञ करते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए। 26, श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्य सम्यग्नाशु जीवति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। कोई ब्रह्मचारी होते हैं जो मंदिर में रहते हैं, वो अपने सुनने के कार्य को यज्ञ करते हैं। मतलब क्या करते हैं, वो सिर्फ भगवान के बारे में सुनते हैं और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो इंद्र तृप्ति के जो साधन है उनका यज्ञ करते हैं। चर्चा करेंगे हम लोग। 27, सर्वा इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। जो और लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आत्म साक्षात्कार के लिए अपने मन और
इंद्रियों को काबू में करते हैं। कैसे? प्राणायाम करके, पतंजलि योग करके। और अपने जो प्राण वायु होता है उसको वो कंट्रोल करते हैं, उसको अष्टांग योग बोलते हैं। 28 द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञ यज्ञश्च यतये संचित व्रता। कुछ कुछ लोग बहुत बड़ा व्रत करके क्या करते हैं, अपने जो जो चीजें हैं उनके पास, जैसे प्रॉपर्टी हो गए, पैसा हो गया, उसको दान करते हैं। और बाकी लोग बहुत बहुत औस्टियर तप करते हैं और अष्टांग योग करके वो क्या करते हैं, कोई अष्टांग योग करते हैं, कोई वेदों को पढ़ते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के वो यज्ञ करते हैं। 29 आपाने जोहति प्राणम, प्राणे आपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहार प्राणान प्राणेश जुहति। और भी कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने प्राण वायु को काबू में करके अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करते हैं। पहले अष्टांग योग के बारे में बताया था, अभी प्राणायाम के बारे में बताया है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम करना या भस्त्रिका करना, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करके वो अपने इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है। तो अभी जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये इतने अलग अलग यत्न क्यों कर रहे हैं लोग। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की चीजों करना पसंद होता है, इसीलिए ये अलग अलग यज्ञों के बारे में चर्चा की गई है। हाँ, तो ये सारे यज्ञ करने का एक ही उपाय है, एक ही गोल है, लक्ष्य है। क्या? कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए, एक ही लक्ष्य है, बाकी कोई लक्ष्य नहीं। तो पहला गोल क्या है, पहला लक्ष्य क्या है? पहले हमने अपनी इंद्रियों को काबू करना सीखना चाहिए। मतलब क्या? पहले मतलब सिर्फ प्रसाद खाएं, दूसरा मतलब जप करें, तीसरा मतलब कम सोएं। ऐसा हमें इंद्रियों को काबू करना सीखना चाहिए और पाप ना करें, ऐसा है। दूसरा, फिर ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान मिलते जाएगा, है ना। तो हमने ऊपर चर्चा की थी कि कैसे यत्न करेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्वरूप बाहर आएगा और हमें ज्ञान मिलेगा। और तीसरा, भक्ति करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे यज्ञ करेंगे हम लोग, ये तीनों चीजें अपने आप हमारे हृदय में आएंगी। तो हम पूछ सकते हैं कि भाई इतने सारे 4-4, 5-5, 6-6 प्रकार के यज्ञ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग स्थान में होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग यज्ञ होते हैं। जैसे हर एक का कर्म अलग होता है, हर एक का लेवल अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो वैसे ही यज्ञ करने का भी स्टाइल, यज्ञ करने का भी लेवल अलग होता है। तो कौन से प्रकार के यज्ञ हैं? कोई क्या करता है, देवी देवताओं की यज्ञ करता है। तो आज सिर्फ हम ये देखेंगे कौन से यज्ञ हैं, और अगले सत्र में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कोई देवी देवताओं को यज्ञ करता है। क्या यज्ञ करता है? वो अपने को जो भी अच्छा चीज लगता है वो दान करता है। जैसे यज्ञ करके हम सत्यनारायण पूजा कर लिया, उसमें हवन कर लिया और हमारे रिलेटिव्स को बुलाया और उनको प्रसाद दिया। तो ये क्या हो गया, अपने अपने पैसे से किया ना, अपने पैसे उसमें खर्च किए और उसी यज्ञ किया। किसका? सत्यनारायण का या गणपति का या शिव जी का, उसको बोलते हैं देवी देवता का यज्ञ। दूसरा, ब्रह्मन का यज्ञ। ब्रह्मन मतलब जो भगवान की शरीर से जो तेज निकल रहा है उसमें यज्ञ करते हैं। वो कैसे करते हैं? अपना जो आइडेंटिटी है, जो हम एक दूसरे को जानते हैं कि मैं कौन हूं, उसको भुला के वो ब्रह्मन में विलीन होना चाहते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा, ब्रह्मचर्य लोग। ब्रह्मचर्य क्या करते हैं? अपना जो सुनने का जो कार्य है उसको वो यज्ञ में लगाते हैं। मतलब क्या भाई, यज्ञ में लगाते हैं मतलब क्या करते हैं? सुनने का जो भी कार्य है उसमें सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं। हियरिंग प्रोसेस एंड सेंसेस इन द फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल। मतलब मन में काबू करके वो बॉलीवुड के गाने, हॉलीवुड के गाने या कोई भी और गाने नहीं सुनते हैं, सिर्फ भगवान का भजन सुनते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। ये बोल रहे, डिवोटी बोल रहे कि सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनो। वैसे ये ब्रह्मचर्य सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनते हैं। जो गृहस्थ होते हैं हमारे जैसे, वो क्या करते हैं? जो इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं उनका यज्ञ में उसको आहुति देते हैं। मतलब क्या कि गृहस्थों को भी कुछ कंट्रोल है। जैसे गृहस्थों को बोला गया कि आपको जो भी एंजॉय करना है वो फैमिली में रह के करो, बाहर मत मुंह मारो, है ना। जो भी करना है आप फैमिली में रह के करो।
फिर जो भी खाते हो भगवान को अर्पण करो, जो भी पहनते हो भगवान को अर्पण करो, जो भी कार्य करते हो भगवान करो। भगवान बोलते हैं कि यद यद आचरित नहीं, यद यद एक श्लोक आता है उसमें, भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मुझको अर्पण कर दो। ये भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उसमें बोला गया है कि जो जो तुम कर रहे हो सब कुछ आप, जैसे वैदिक संस्कृति में ये था कि जो भी हम घर में लाते थे, दूध लाएं, फल लाएं, सब्जी लाएं, यहाँ तक कि दवाई भी भगवान के सामने रख दो, कपड़े भी भगवान के सामने रख दो। ये है गृहस्थ का धर्म। हाँ, और फिर ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, ये है गृहस्थ का धर्म। तो ये वैसे वो आहुति कर रहा है। फिर कोई लोग क्या करते हैं, अष्टांग योग करते हैं। पतंजलि जो थे उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया कि अपने प्राणवायु को कंट्रोल करो, प्राणायाम करो, और उसके कारण तुम्हारा जो प्राण है उसको धीरे 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 कुंडली की करते लेके जाओ। यहाँ पे होती है कुंडली, सर के एकदम ऊपर, और फिर वहां से लेके वो योगी क्या करता है, उसका सर फोड़ के वो जो आत्मा है कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन चले जाता है, उसको बोलते हैं अष्टांग योग। इसका मतलब उसके अलग अलग प्रकार भी हैं, अष्टांग योग का एक ही प्रकार नहीं है। जो ब्रह्मन के ऊपर मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, वो ब्रह्मन में जाके विलीन होता है। जो परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करता है वो वैकुंठ में जाता है। तो ये अष्टांग योग बताया। तो आज के दुनिया में, आज के टाइम में ये बहुत मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है। फिर कोई क्या करता है, दान करता है। जैसे कोई मैंने आज बताया, जैसे कि कोई ब्लड डोनेट करता है, कोई ओल्ड होम निकालता है, ऑर्फनेज निकालता है, कोई खाना डोनेट करता है, कोई पैसा डोनेट करता है, कोई कुछ डोनेट करता है, कुछ अलग अलग प्रकार के डोनेशन करते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्यमय यज्ञ। वो भी एक यज्ञ हो गया। फिर तपोमय यज्ञ, मतलब कोई चतुर्मास का यज्ञ करता है, 4 महीने वो नीचे सोता है, बाल नहीं काटता है, एक ही बार खाना खाता है, जो हो गया तपोमय यज्ञ। अलग अलग प्रकार के उसमें भी यज्ञ होते हैं। फिर योग यज्ञ, योग यज्ञ मतलब क्या कि कोई एक पर्टिकुलर मिस्टिक पावर के लिए, हाँ, वो हठ योग करता है। मतलब क्या, हठ योग मतलब अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के मिस्टिक पावर को हम काबू कर सकते हैं। परफेक्शन बोलते हैं उसको, तो ये करता है वो, योग यज्ञ बोलते हैं उसको। तो जैसे ध्यान करके कोई ये वर मांग सकता है कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, या मुझे चंद्र पे जाना है, तो ये सारे मिस्टिक योगा वो कर सकता है। फिर 9वां है स्वाध्याय यज्ञ। मतलब क्या, वो उपनिषद, वेदांत, भगवद गीता, भागवतम सब कुछ पढ़ता है, सांख्य फिलॉसफी, और सारा सबका वो एनालिसिस करता है, क्या लिखा है इसमें। वो भक्ति नहीं कर रहा है, पर सबका एनालिसिस कर रहा है, उसको बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। इसमें सांख्य योग भी आता है, जो भक्ति को भी के साथ साथ बोला गया है। जैसे दूसरे अध्याय हम पढ़ते हैं कि सांख्य योग मतलब भक्ति के आसपास है, और उसमें व्यक्ति क्या करता है, सांख्य योग पढ़ के भक्ति करने लग जाता है। उसको समझ में आता है कि ये चीज सब टेम्पररी है, आत्मा और परमात्मा सिर्फ परमानेंट है, ऐसे। और फिर आखिर में हठ योग और प्राणायाम को वापस बताया गया। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जिससे व्यक्ति धीरे धीरे अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान है धीरे धीरे बढ़ा सकता है, और वो अपना गाड़ी आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो हम यही भी विराम देंगे आज इस भगवदगीता की चर्चा में। आज थोड़ा बहुत हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज उनका आविर्भाव दिन है, तो एक 10-15 मिनट उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कृष्ण भगवान और राधा रानी 5000 साल पहले आए थे। आपको सब पता है कि द्वापर युग में आए थे वो, और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। तो कृष्ण और राधा और अलग अलग गोपियां जो है एक दूसरे से बहुत प्रेम करती। तो राधा रानी जो है ये कृष्ण के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम करती, इतना कि कृष्ण भी उसके ऊपर इतना प्रेम नहीं करता। अब कृष्ण को ये जानना था कि भाई राधा, तुम मुझ पे इतना क्यों प्रेम करती हो, मुझ में ऐसा क्या है जो देख के तुम मुझ पे प्रेम करती हो, ये कृष्ण को जानना था। तो राधा रानी ने बोला तो वो तो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राधा कभी कभी कृष्ण कृष्ण बोल के मूर्छित हो जाती है, कभी कभी उसके शरीर पे रोमांच खड़े होते हैं, कभी कभी वो ऐसे पागल जैसा बोलती है कि भवरे से बात करते, ए भवरे, तो कृष्ण से मिला क्या आज, क्या बात किया तूने कृष्ण से, क्या कृष्ण का मैसेज लाया है तू, ये भवरे से बात करती है। जैसे पागल लोग बात करते हैं वैसे कृष्ण में वो पागल है ना। फिर कृष्ण को बोलते हैं कि तू छलिया है, तू मेरे सामने मत आ। फिर बोलेगी मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। ऐसे कृष्ण में एकदम विलीन है राधा। तो ये कृष्ण समझ नहीं पा रहे थे कि इतना प्रेम क्यों करती है, इतना क्यों मेरे लिए पागल। तो राधा रानी ने बोला कि उसके लिए आपको मेरे जन्म में आना पड़ेगा। जैसे कहीं कभी कभी माताएं बोलते हैं कि तुम्हें अगर स्त्री का स्वरूप जानना है तो तुम्हें स्त्री के जन्म में आना पड़ेगा, कि बच्चे कैसा पैदा करते हैं, बच्चे के लिए इतना सैक्रिफाइस करते हैं। ये पुरुष को बोलती है वो। वैसे ही राधा रानी बोलती है कि तुम्हें अगर जानना है कि मैं तुमसे इतना प्रेम क्यों करती हूँ, तो मेरे शरीर में आपको आना पड़ेगा। कृष्ण ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है,
मैं क्या करूंगा, कृष्ण राधा रानी जैसा ही मैं भाव लेके जन्म लूंगा। तो इसलिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले जन्म लिया, जब वो अवतरित हुए राधा के मूड में। जैसे कभी कभी पिता क्या करता है, बच्चों के साथ खेलने के लिए क्या करता है, बच्चे ही बन जाता है पिता या माता, है ना, वो बच्चे जैसे बन जाती है। बच्चे के साथ वो खिलौने खेल रहे हो, उसके साथ फाइटिंग कर रही है कि नहीं 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 मैं जीता हूँ, मैं तुम चीटिंग कर रहे हो, ये बच्चे के जैसे ही करते हैं। तो वो बच्चों का मूड अर्पण करके या लेके उनके साथ खेलते हैं। वैसे ही कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी का मूड लिया और वो कृष्ण का रूप लेके, भक्त का रूप लेके आ गए। तो राधा रानी ने बोला कि देखो तुम जब आओगे तो तुम मूर्छित होके बहुत बार गिरोगे, इधर उधर गिरोगे, तुमको तुम्हारे शरीर को तकलीफ होगी, तो इसलिए मैं तुमको कवर कर लूंगी। कैसे कवर कर लूंगी, मेरी कांति से कवर कर लूंगी। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था तो वो सुवर्ण कांति के थे, क्योंकि कृष्ण जो राधा रानी जो है वो सुवर्ण कांति की है, गोल्डन कलर। कृष्ण राधा रानी का यही वही है, मंत्र वही है, तप्त कंचन रौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कंचन मतलब गोल्डन कलर की है। तो उस रूप में वो आए। तो जब कृष्ण आते हैं इस धरती तल पे अकेले नहीं आते, अलग अलग रूप लेके आते हैं। तो वो अपने सारे पार्षदों के साथ आए इस बार, 5 स्वरूप में आए वो, 5 स्वरूप। कौन से स्वरूप है, जय श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य मतलब कृष्ण भगवान, प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद मतलब बलराम जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत, अद्वैत मतलब शिव जी और विष्णु का कॉम्बिनेशन है, गदाधर, गदाधर मतलब राधा रानी है, और शिवास, शिवास ठाकुर मतलब नारद मुनि है। ये अलग अलग 5 रूप लेके आए। जब रामायण में आए थे तो 4 रूपों में आए थे, कौन से, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और अभी वो 5 स्वरूप में आए हैं, उसमें से 3 विष्णु तत्व है, चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, ये विष्णु तत्व मतलब खुद विष्णु है वो, और बाकी के 2 भक्त हैं, राधा रानी भक्त है और नारद मुनि भी भक्त है, ऐसे स्वरूप में आए थे। तो 500 साल पहले उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में नवद्वीप करके एरिया है, उसको योगपीठ भी बोलते हैं, मायापुर भी बोलते हैं, वहां पे उन्होंने जन्म लिया। उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम था शशि देवी, बहुत पुण्यवान थे। ये नंद महाराज और यशोदा की एक्सपांशन है, उनके घर में जन्म लिया। तो उनकी कथा ऐसे है कि उनको 8 बार गर्भवती हुई, कौन, सची माता, पर एक बार भी वो लड़का जो भी बच्चा था वो जिंदा नहीं रहा। कई सालों के बाद उनको उनके पेट में एक लड़का हुआ, उनका जो शरीर है पूरी तरह से एकदम तेजोमय हो गया था, सारे देवी देवता आके उनकी पूजा कर रहे थे। वो उनको समझ में आता ऐसा क्यों हो रहा है। तो सब उनके जो पिता थे सची माता के, नीलंबर चक्रवर्ती, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पेट में बहुत अद्भुत व्यक्ति है, इसीलिए तुमको ये सारे भास हो रहे हैं कि देवी देवता आते हैं, वो पूजा करते हैं वगैरह वगैरह। तो 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11, 12, 13 महीने खत्म हो गए, फिर भी बच्चा बाहर ही नहीं आया। जनरली 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है, 9 या 10 मैक्सिमम, 13 महीनों के बाद भी बच्चा वापस बाहर नहीं आया। तो माता पिता एकदम दुखी हो गए कि क्या हो गया, बच्चा क्यों वापस बाहर नहीं आ रहा। तो उन्होंने वापस नीलंबर चक्रवर्ती को पूछा, कि वो एस्ट्रोलॉजर थे, भविष्य देखते थे, उनको सब पता था, बहुत अच्छे भविष्यकार थे। उन्होंने बताया कि ये जो पुत्र है, ये जो बच्चा है आपका, ये साक्षात नारायण है, तो इसीलिए वो ऐसी घड़ी की राह देख रहा है जिसमें सब लोग हरि का नाम ले, और शुभ घड़ी का राह देख रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन चंद्र ग्रहण था। तो आपको सब पता है कि ग्रहण जब होता है तो ग्रहण के समय सब कुछ इनऑस्पिशियस रहता, अशुभ रहता है, इसलिए लोग बाहर नहीं निकलते और कोई भी कार्य नहीं करते, सिर्फ भगवान का नामस्मरण और भगवान की भक्ति कर सकते, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकते, खाना नहीं कर सकते, खाना परोस नहीं सकते, खाना पका नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते। तो सब लोग जाके गंगा में डूब के हरि 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 ऐसे बोल रहे थे, हरि का नाम ले रहे थे। तो उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, क्योंकि उनको चाहिए था कि अच्छा टाइम मिले, तो ऐसा इससे अच्छा टाइम और क्या हो सकता है कि जब सब लोग हरि हरि का नाम ले रहे हैं, तो तब उन्होंने जन्म लिया। तो भगवान के, इसलिए भगवान को जन्म लेने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे अनुसार चंद्र ग्रहण जो होता है अशुभ होता है, पर भगवान जब जन्म लेते तो उनको शुभ अशुभ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो ऐसे वो जन्म लिया उन्होंने। तो जैसे ही जन्म लिया वो रोज रह गए थे, तो जैसे रो रहे थे तो सबको एकदम, सब उसको शांत करने का प्रयत्न कर रहे थे, सब जो माताएं थी, बोले अरे शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, क्यों इतना हंगामा कर रहा है। तो नहीं, रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था।
तो उसमें से एक माता ने बोला कि हरी हरी, चुप रहो, हरी हरी, ऐसे बोला। तो जैसे ही हरि का नाम ले वो बच्चा हे, ऐसे करके मुस्कुराने लग गया। तो अरे अरे अरे, ये तो बच्चा मुस्कुरा रहा है, हरि का नाम ले तो मुस्कुरा रहा है। तो सबने बोला हरी 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 हरी। तो वापस हरी हरी का नाम लिया तो वो हे, मुस्कुराने लग गया। सबको एकदम पता चल गया कि अरे इसका ट्रिक यही है, जब भी ये रोता है तो हरि का नाम लो। तब से वो सारी माताएं उसका हरी 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 करके उसको हंसाते थे। तो क्योंकि बच्चे का जन्म जो हुआ था एक नीम पेड़ के नीचे हुआ था, इसके इसलिए उसका नाम निमाई रखा गया। और इसीलिए भी क्योंकि उनके पहले 8 बच्चे मर गए थे, तो इसीलिए उनको नीम जो होता है वो शुभ होता है, कड़वा होता है, शुभ होता है, इसीलिए उसका नाम भी निमाई रखा था, ताकि वो बच्चा अच्छे से रह पाए। तो एक नाम निमाई था, और एक नाम उसका रखा गया था कि विश्वम्भर, मतलब सारे विश्व को वो तारेगा, इसलिए उसका नाम विश्वम्भर रखा था। और क्योंकि उसकी कांति जो थी वो स्वर्ण कांति थी, गोल्डन थी, इसलिए उसका और एक नाम गौर रखा था, गौर, गौरांगा गौर, मतलब स्वर्ण कांति वाले। तो खुद कृष्ण ही है। तो एक दिन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे कृष्ण, गौरंगा निमाय। तो एक 5-6 साल के थे, वो रोज नदी में जाके नहा के आते थे। तो एक दिन उनको बहुत सारे छोटे छोटे कुत्ते दिख गए, बछड़े थे, मतलब कुत्ते के पिल्ले बोलते हैं जो, एकदम अभी भी उनका जन्म हुआ था। तो उनको बहुत पसंद आए, वो उनके साथ खेलते थे। अब वैदिक संस्कृति के अनुसार जो ब्राह्मण होते हैं वो कुत्ते और बिल्ली को घर पे रखते नहीं है, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली जनरली नहाते नहीं, कहीं भी घूमते हैं, इधर उधर पार्टी करते, कभी धोते नहीं, तो इसीलिए वो घर पे लाते नहीं है। पर गौरांगा या निमाई, वो बच्चा जो था वो कुत्ते को लेके आए, छोटा एकदम अच्छा सा अच्छा दिखने वाला पपी था, उसको लेके आए और घर में उसके साथ खेल रहा था। तो सच्ची माता जो अपने अपने काम में व्यस्त थी, तो उसको एक बेटे ने, एक लड़के ने जाके बोला कि सच्ची माता, तुमको पता है निमाय तुम्हारे घर में कुत्ता लेके आया है। जैसे ही सच्ची माता को पता चला, उसको आश्चर्य बोला, अरे कुत्ते को लेके आया? तो गई और बोली कि निमाय ये क्या कर रहे हो तुम, कुत्ते क्यों लेके आए घर पे? तो मम्मा ये कुत्ता बहुत अच्छा है, माँ ये कुत्ता बहुत अच्छा है, मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है खेलने के लिए। तो सच्ची माता ने बोला कि भाई ठीक है, अच्छा लगता है, बट उसको अंदर क्यों लेके आए? तो नहीं नहीं, मेरे साथ ही रहेगा ये। तो सच्ची माता को पता लगा कि ये उसके साथ अभी दूर नहीं रहेगा। उसने क्या किया, बोला कि अच्छा तो ठीक है, तुम एक काम करो, नहा के आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं संदेश और अच्छे अच्छे स्वीट बनाती हूँ। तो निमाई ने बोला कि ठीक है, तो नहाने के गया। तो सच्ची माता ने उस कुत्ते को छोड़ दिया, वो कुत्ता भाग गया। तो जैसे ही कुत्ता भाग गया, निमाई आ गया घर पे, बोले कि माता मेरा कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, रोने लग गया वो। तो माता ने बोला कि हाँ हम लोग मिलके ढूंढते हैं। ढूंढने लग गए। तो क्या हुआ था, क्योंकि निमाई ने उस कुत्ते को पकड़ लिया था और उसके साथ खेल रहा था, उस कुत्ते को भगवान के लिए प्रेम मिल गया, भक्ति आ गई उस कुत्ते में, प्रेम भाव उत्पन्न हुआ उस कुत्ते में। और वो कुत्ता उस गांव में नवद्वीप में जाके सारे घर घर में जाके हरे कृष्णा बोल रहा था, और हरे कृष्णा का जप करके एकदम उछल रहा था, कूद रहा था। सब लोग एकदम आश्चर्य से वो देख रहे थे उसका, अरे तो कुत्ता है और हरे कृष्णा बोल रहा है। और ऐसे ही नहीं कि आकाश में ऐसे कूद रहा था, वो कूद रहा था, सब लोग ऐसे आश्चर्यकारक, और सब लोग देख रहे थे ये। तो कोई एक बच्चा है, उसने बोला कि निमाई निमाई तेरा कुत्ता मिल गया है, वो गांव के अंदर जाके वहां पे सबके सामने हरे कृष्णा कर रहा है। तो उसको भी आश्चर्य हुआ, वो भागा भागा आ गया वहां। तो जब तक पहुंचता वो कुत्ता एकदम ऐसे हवा में उसने छलांग लगाई और हरे कृष्णा बोल के उसने शरीर त्याग कर दिया। और शरीर त्याग जब किया, उसके शरीर से आत्मा का जो ज्योति है सबको दिखा, और वो ज्योति आध्यात्मिक जब गोलोक चले गया। इस कुत्ते को मुक्ति मिल गई, क्यों? क्योंकि उसने निमाई के साथ कुछ चंद चंद पल गुजारे थे। इसलिए तो बचपन से ही निमाई ने अपने जो करतूत हैं, भगवान हैं, इसका सबको दर्शन कर दिया। एक बार निमाई अपने कोर्टयार्ड जिसको बोलते हैं, आंगन में खेल रहा था। तो पहले तो फ्लैट सिस्टम नहीं था, पहले तो बंगले थे। तो आंगन में खेल रहा था, तो एक बहुत बड़ा सांप आया वहां पे, और सांप के साथ वो निमाई खेलने लग गया। तो सांप ने किया ऐसा, गोल गोल बैठते ना सांप, कभी आप देखोगे, कभी कभी जो सपेरा होता है तो उसको सांप को एक छोटे डिब्बे में रखता है, उस डिब्बे में गोल गोल करके बैठता है वो। कि जो बड़ा सांप था वो गोल गोल होकर उस ऐसे बैठ गया वो। तो निमाई ने क्या किया, उस सांप के ऊपर जाके लेट गया वो। जैसे आपने कभी देखा होगा फोटो, तो जैसे गर्भोदक्षय विष्णु हैं, वो गर्भ
समंदर के ऊपर लेटे हैं और उनके नीचे अनंत शेष है, बहुत बड़ा सांप है, तो उसके ऊपर सर्प है, उसके ऊपर वो सो गए, तो सो जाते हैं। तो वैसे ही कृष्ण ये निमाई जाके लेट गया और अच्छे से खर्राटे मार के सो रहा था। तो किसी ने देख लिया, बोला कि अरे निमाई क्या कर रहे हो तुम? तो वो सर्प के ऊपर वो लेटा था, तो सची माता को बुलाया, सारे उनके जो नेबर्स थे उनको बुलाया, सब लोग एकदम डर गए, इतना बड़ा सांप है और इसको काट डाले। सब लोग डर के बोल रहे थे कि जाओ जाओ हटो यहाँ से, तो फिर भी सर्प नहीं जा रहा था। और निमाई को बोल रहे थे, निमाई उठाओ उठाओ वहां से, सर्प तुमको काट लेगा। निमाई कुछ नहीं, आराम से लेटा हुआ। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनको पता है कि गरुड़ का नाम लेते हैं तो सांप भाग जाता है, तो सबने बोला गरुड़ 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 गरुड़, ऐसे चिल्लाने लग गए, सब लोग चिल्लाने लग गए। तो जैसे ही आवाज आई तो उस सर्प को पता चल गया, वो सर्प खुद कौन थे? बलराम जी हैं, अनंत शेष हैं। तो पूरे ब्रह्मांड को अपने सर के ऊपर वो धारण करते हैं और हजारों उनके मुख है, हजारों मुख से वो कृष्ण का स्तुति करते हैं। तो उनको समझ में आ गया कि कुछ तो यहाँ पे हंगामा हो रहा है, तो वो चुपचाप से वो निकल गए। तो ऐसे बचपन से उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। एक बार दो चोर आए थे, अब दोनों चोरों ने देखा कि ये जो निमाई है आंगन में खेल रहा है, छोटा बच्चा है 4-5 साल का, और उसके शरीर पे बहुत सारे गहने हैं। पहले बच्चों को गहने पहनाते थे, सोने की चेन रहती थी, फिर आर्मलेट्स होते थे, ब्रेसलेट्स होते थे, फिर कान में कुंडल होते थे, फिर कभी कभी नाक में भी होते थे, कभी शरीर में अलग अलग जगह, कमर में होता था, पैर में होता था, ऐसे अलग अलग आभूषण होते थे सोने के। आजकल तो हम पहन ही नहीं सकते सोना बाहर, इतने सारे चोरियां हो रही है। तो इन चोरों ने उसको देख लिया, बोला अरे बाप रे, बहुत अच्छा मौका है, आप इस बच्चे को किडनैप कर लेंगे और इसको कहीं जंगल में जाके उसको मार डालेंगे और उसका पूरा सोना ले लेंगे हम लोग। तो ऐसा बोल के उन्होंने उसको गए, और आसपास काफी सारे लोग थे रास्ते से जाने वाले, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको रुला नहीं सकते हैं। तो उस चोर को बोला कि ये उस चोर ने बोला कि ए बच्चा इधर आओ, ये संदेश है तुम्हारे लिए खाने के लिए। तो निमाई ने बोला क्या है? बोले बहुत मीठा संदेश, संदेश मतलब पेड़े का जैसा होता है, दूध का बनता है, ये बंगाली मिठाई है। तो निमाई गया और उसको संदेश दिया, तो वो खा लिया। तो बोला कि चलो हम तुमको घुमा के लाते हैं। बोला हाँ कोई बात नहीं चलो। तो उसको सर पे कंधे पे बिठाया और चलने लग गए वो लोग, और उसको अलग अलग स्टोरी बता, हाँ हम तुमको लेके जा रहे हैं, पूरा हम नवद्वीप घूमेंगे और फिर अलग अलग मिठाई देंगे। ऐसा करते करते उसको एक एक संदेश दे रहे थे, और वो खा रहा था निमाई मस्त से, और उसको स्टोरी बता रहे थे। तो उसने बोले कहाँ लेके जा रहे हो मुझे आप? अरे कुछ नहीं, हम ऐसे घूम के आ जाएंगे, चिंता मत करो तुम। और वो प्लान बना रहे थे कि चलो हम इसको ना जंगल में लेके जाएंगे, अपना वो अड्डा जो है ना, अड्डे पे लेके जाएंगे, वहां पे उसका सब सोना उतारेंगे और उसको मार डालेंगे। ऐसा प्लानिंग कर रहे थे वो, ऐसे घूम रहे थे, और उनको लगा कि अभी अपना अड्डा आ ही गया, और घूम के आ गए और अड्डे पे आ गए। उन्होंने उसको उतारा, जैसे ही उतारा निमाई वहां से भाग गया और अपने घर के अंदर चले गया। तो ये दोनों चोर चोर देखते लगे, हैं हम तो अपने अड्डे पे चले गए थे, अब ये घर कैसे आ गया? वो अचंभित हो गए, हम तो अपने घर गए तो ये बच्चे का घर कैसे आ गया? तो जैसे ही उनको पता चल गया कि हम गलत जगह आ गए, तो ये भगवान की योग माया शक्ति से वो लोग अपने अड्डे के जगह जाने के बजाय अपने घर, निमाई के घर पे आ गए। और जैसे ही निमाई अंदर गया तो सची माता जगन मिश्रा बाहर आ गए, क्योंकि वो सब लोग ढूंढ रहे थे कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई। देखा तो ये बच्चा भाग के आ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है, कहाँ गया था तू? उसने बोला कि मैं गुम हो गया था, दो अच्छे भले लोग आए, उन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आए। तो कहाँ है वो लोग, हम उनका सत्कार करेंगे। तो जब तक जो सत्कार करते दोनों भाग चुके थे। कितने भाग्यशाली रहेंगे वो दो चोर, जिनको कृष्ण भगवान को कंधे पे उठा के पूरा मायापुर उनको घूमने का चांस मिला। सोचिए उनका क्या भाग्य रहेगा। एक दिन एक भविष्यकार उस गांव में आया था, बहुत अच्छा भविष्यकार। तो पहले के जमाने में ना भविष्यकार एकदम परफेक्ट पता थे, पिछले जन्म में हम क्या थे, अगले जन्म में क्या होने वाले हैं, इस जन्म में हम क्या क्या मिलेगा हमको, सब कुछ परफेक्टली बताते। आजकल ऐसे भविष्यकार मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो उस भविष्यकार ने सबका हाथ दिख रहा था, तो निमाई भी वहां पे पहुंच गया। तो निमाई ने बोला कि ओ स्वामी जी, मुझे बताइए मेरा भविष्य में, मेरे पिछले जन्म में मैं क्या था। तो उसने उसका मुखड़ा देखा, हाथ देखा, और वो चिंतन करने लग गया। तो बोला कि मेरे इष्ट देव का मैं चिंतन करता हूँ, गोपाल मंत्र बोलता हूँ। तो गोपाल मंत्र बोला, और वो ध्यान कर रहा था कि कौन है ये लड़का, कौन है ये लड़का, बताओ मुझे गोपाल जी बताओ। तो जैसे ही उसने मनन करना चालू कर दिया,
उसने बहुत देखा, बहुत बड़ा समंदर है, समंदर का पानी की लहरें ऊपर से नीचे जा रही है, और बहुत बड़ा एक मछली है, और उस एक मछली जो है वो बोट को खींच रही है। तो मुझे समझ क्या, उसको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। तो उसने आंखें खोल ली और वापस वो मेडिटेट कर रहा था। बोला कि ओ गोपाल जी, मुझे बताइए लड़का कौन था पिछले जन्म में। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सागर है, और सागर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कछुआ है, इतना बड़ा कछुआ कि पूरा मेरू पर्वत जो उनके ऊपर है, तो उनको वो पास टाइम दिख रहा था। वापस आश्चर्य के ऊपर, अरे ये क्या मेरे सामने आ रहा है। वापस उन्होंने चिंतन किया, देखा तो नरसिंह भगवान दिख गए। वापिस चिंतन किया तो कृष्ण दिख गए, बलराम दिख गए, ऐसे अलग अलग दशावतार भगवान के उनको दिख रहे थे। तो एकदम अचंभित हो गया, और वो लड़का निमाई पूछ रहा कि स्वामी जी बताएंगे मेरे को मैं कौन था पिछले जन्म में, बताओ बताओ। तो वो एकदम आश्चर्य के अरे ऐसे जैसे देखते रह गए, ये बालक है कौन, अलग अलग भगवान के मुझे अवतार दिख रहे हैं, और ये है कौन। तो उन्होंने बोला कि मैं कल बताऊंगा, मैं थोड़ा आज जाके मनन करता हूँ। तो ऐसे उन्होंने उस भविष्यकार को भी चकमा दे दिया। एक बार एक ब्राह्मण आया था जगन्नाथ मिश्रा के घर में। तो पहले ये प्रथा होती थी कि जो अच्छे कुल के लोग होते थे वो ब्राह्मण को अपने घर में रखते थे, उनको खाना देते थे, उनकी सेवा करते थे। तो उन्हें जगन्नाथ मिश्रा ने उन ब्राह्मण को बुलाया, बोला कि आप आइए हमारे घर पे रहिए, खाना बनाइए, खाना खाइए, और जितना दिन रहना आपको रहिए। तो ब्राह्मण ने बोला ठीक है। तो उनको बोला, शाम का समय था, 7-8 बज गए थे। तो उनको बोला कि हम आपके लिए कुछ कुकिंग करें। तो ब्राह्मण ने बोला कि नहीं, मैं खुद ही कुकिंग कर लूंगा, क्योंकि जनरली जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो खुद का कुकिंग खुद करते हैं, किसी और के हाथ से खाते ही नहीं, प्योरिटी रखने के लिए। तो उसने बोला कि मैं खुद कुकिंग कर लूंगा। तो उन्होंने क्या किया, 7-8 बजे सब कुछ साफ किया, किचन जो भी था, और उनको सब सामग्री दे दी, राइस दे दिया, सब्जी दे दिया, दाल दे दिया, जो भी था। तो ब्राह्मण ने एक आध घंटा लगा के सब कुछ कुकिंग किया, और भोग वोग बनाया, प्लेट उसने, और प्लेट लेके अल्टर में चला गया, मंदिर जहाँ पे था वहाँ पे चले गया, और वो रख के तुलसी माला डाला उसके ऊपर, और घंटे बजाते हुए मंत्र बोलने लग गया। गोपाल का मंत्र बोल रहा था, 5 मिनट तक मंत्र बोल रहा था। और जैसे आंखें खोली, बोला कि अभी भोग चढ़ रहा है, भगवान खाएंगे। देखा तो एक बच्चा था वहां पे खड़ा था, और वो बच्चा उस प्लेट में हाथ डाल के खा रहा था। हाय हाय ऐसे चिल्लाया ब्राह्मण। तो सारे सब लोग आ गए वहां पे, देखा तो निमाई वहां पे खड़ा रह के उस अल्टर के अंदर जो प्लेट रखा था उसमें हाथ डाल के खा रहा है राइस और जो भी था, और ऐसे मस्त मस्त ऐसा खा रहा है कि जैसे बहुत टेस्टी आ रहा है। तो उन्होंने चिल्लाया, हाय हाय मेरा जो ऑफरिंग था, मेरा जो भोग था, इसने सब गंदा कर दिया इस लड़के ने। जगन्नाथ मिश्रा है वो बहुत गुस्सा हुए, बोले कि अरे ये ब्राह्मण आए, इतना प्योर ब्राह्मण है, तुमने उसको उसका जो ऑफरिंग है गंदा कर दिया, हटो यहाँ से, ऐसे लाठी लेके उसके पीछे रख दिया। तो ब्राह्मण ने बोला कि कोई बात नहीं है, लगता है कि भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं कुछ खाऊं, वैसे तो रोज मैं फल खाता हूँ, मूल खाता हूँ, ऐसे कोई जरूर नहीं कि मैं कुछ खाना ही खाऊं। तो नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, आपको वापस कुकिंग करना पड़ेगा। ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं वापस नहीं कर सकता, एक बार कर लिया, भगवान की इच्छा यही है कि मैं कुछ और खाऊं। तो बोले नहीं नहीं, माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, आप माफी मत मांगिए, तो बच्चा है ना, उसको क्या पता। तो जगन्नाथ मिश्र बोला प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे करके उनके पैर पड़े, और उनको बोला कि आप वापस कुकिंग कीजिए। तो 9-9:30 बज गए थे। तो उन्होंने वापस कुकिंग किया, वापस भोग चढ़ाया। तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला कि उस लड़के को दूर रखना। तो उस लड़के को पकड़ के रखा था निमाई को। तो उन्होंने वापस सेम मंदिर में गए, प्लेट लगाया, और मंत्र बोलने लग गए, गोपाल का मंत्र बोल रहे थे। 5 मिनट के बाद आंखें खोली, सेम एपिसोड, निमाय वहां पे खड़ा था, राइस सब्जी स्वीट खा रहा था मस्त, और ब्राह्मण की तरफ ऐसे दिख रहा था। तो ब्राह्मण बोला हाय हाय, वापिस चिल्लाया। तो जैसे ही चिल्लाया तो वापिस सब लोग आ गए, और सब लोग लेके लाठी लेके भाग गए निमाई के पीछे, निमाई भाग गया। तो ब्राह्मण वापस बोला कि अरे ऐसा लगता है कि भगवान की इच्छा नहीं, 2 बार ऐसे मेरे साथ हुआ है। नाराज होकर बैठ गया। तो नहीं, तो सब लोग उसको मना रहे हैं कि नहीं नहीं वापस करिए आप। अरे बोले 2 बार किया मैंने, तीसरे बार कैसे कर सकता हूँ। तब तक एक तरुण व्यक्ति अंदर आया, और उस तरुण का जो तेज देख के वो ब्राह्मण एकदम हैरान हो गया, अरे बाप रे, कौन लड़का है ये, क्या तेजोमय व्यक्ति है ये, किसका लड़का है ये। जगन्नाथ मिश्र ने बोला ये मेरा बड़ा लड़का है, इसका नाम विश्वरूप है। तो विश्वरूप ने भी सब कुछ ज्ञान लिया और बोला कि नहीं नहीं, आप प्लीज वापस कुकिंग कीजिए, मैं इस बार ध्यान रखता हूँ कि निमाई नहीं आएगा। तो ब्रह्मा ने बोला नहीं नहीं भाई, मैं 2 बार कर चुका हूँ, लगता है कि भगवान की मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सिर्फ फल ही खाऊं, उनकी इच्छा है, इससे अच्छा मैं कुछ और फल फूल खा के छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब 12 बज गए थे,
अब विश्वरूप ने बोला कि नहीं 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 नहीं, आप प्लीज प्लीज कीजिए, ऐसे हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप हमारे घर पे और बिना कुछ खाए जा रहे हो, आप ये अच्छी चीज नहीं है। तो ऐसा मना लिया उनको, क्योंकि विश्वरूप मतलब बलराम जी हैं, बलराम जी का सौंदर्य बहुत ज्यादा है। तो उसका सौंदर्य देख के वो व्यक्ति ब्राह्मण बोला कि हाँ ठीक है, मैं लास्ट बार कुकिंग करता हूँ। तो कुकिंग करने लग गया। तो इस बार निमाय को जगन्नाथ मिश्र ने बोला कि निमाय कहाँ है। तो सबने बोला कि निमाय एक रूम में जाके सो गया है और उसको लॉक कर दो बाहर से। तो वो लॉक कर दिया बाहर से रूम, और निमाय सो गया था। अब 12 बज गए तो सब लोग जाके एक एक जाके सो गए। योग निद्रा माया जो है, माया देवी है, धीरे धीरे इस घर में प्रवेश कर गई और सब सो गए ब्राह्मण को छोड़ के। अब ब्राह्मण कुकिंग कर रहा है, 12:30 बज गए। उसने ऑफरिंग कर दिया, बोला कि लास्ट बार मैं ऑफर करता हूँ। प्लेट रखा, वापस मंत्र बोला, 5 मिनट बाद देखा तो निमाई सबको चकमा दे के वापस आ गया। हाय हाय ऐसे वापस चिल्लाए वो। अब इस बार कोई नहीं आया क्योंकि सब लोग निद्रा देवी के चंगुल में सब अच्छे से सो रहे थे। तो निमाई मस्त खा रहा था। तो वापस बोला हाय हाय मेरा तुमने भोग वापस खराब कर दिया, तीसरी बार खराब कर दिया, मैं क्या करूं, भगवान मुझसे नाराज है वगैरह वगैरह बोलने लग गया। तो निमाई इस बार बोले, अरे ओ ब्राह्मण, इतना क्यों गुस्सा करते हो? तुम बार बार मुझे बुलाते हो और मैं खाना खाने आता हूं तो तुम मुझे भगा देते हो। ये कौन सा तरीका है? तुम पिछले जन्म में भी मेरे घर पे आए थे, नंद महाराज के घर पे, और तब मैंने ऐसे ही किया था। याद है तुम्हें? तुम्हें तो याद नहीं होगा पर मुझे याद है। नंद भवन में तुम आए थे और तुमने ऐसे ही कार्य किए थे और मैंने तुमको ऐसे ही किया था। तो इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। ऐसा बोल के निमाय ने अपना अष्टभुज, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, अष्टभुज का दर्शन दे दिया उनको। मतलब 8 हाथ थे उनके। 4 हाथों में ये था क्या? शंख चक्र गदा पद्म। शंख चक्र, सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म, ये 4 चीजें थी। 2 हाथों में माखन था, यहाँ पे एक माखन और से खा रहे थे माखन, और 2 हाथों से बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसे अष्ट हाथों वाले कृष्ण का दर्शन उस ब्राह्मण को दे दिया। तो ब्राह्मण एकदम विस्मयित हो गया और आनंद से लोटपोट हो रहा था, ऐसे स्टंट हो गया, मतलब एक ही जगह स्टैचू हो गया उसका। कृष्ण ने बोला कि तुमने बहुत भक्ति की है मेरी, इसलिए तुम्हें खास दर्शन देने के लिए मैंने ये लीला की है। पिछले जन्म में भी सेम किया था, इस जन्म में भी मैंने सेम लीला की है तुम्हारी। तो तुम अच्छे से रहो और तुम ये चीज किसी और को नहीं बताओगे, बताओगे तुम्हारा जीवन का मैं नष्ट कर दूंगा मैं। क्योंकि जब भगवान अपना ऐसे छिन्न रूप में आते हैं, वो कृष्ण के रूप में नहीं आते, तो वो अपना जो सौंदर्य है, ऐश्वर्य, किसी को बताने नहीं चाहते, क्योंकि छंद रूप में है, छुपे हुए रूप में है, भक्त के रूप में आए हैं। तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और ऐसे करके कृष्ण भगवान अपना दर्शन बंद कर देता है। तो ब्राह्मण एकदम, क्या बोलते, अष्ट विकार आते हैं उसको, उसके शरीर पर रोमांच खड़े होते हैं, नाचने लगता है वो, और राइस को खाता है, राइस से नहाता है खुद को, और लोटपोट हो रहा है उधर। तो वो हाय हाय सुन के जगन्नाथ मिश्र अब युग निद्रा निकल गई। तो सब घर वाले आ गए, तो देखा तो ये ब्राह्मण नाच रहा है, कूद रहा है, एकदम एकदम इतना खुश है। सब उसके शरीर में राइस लगा हुआ है, शरीर का राइस उठा के खा रहा है। तो जगन्नाथ मिश्र ने बोला ब्राह्मण आप ठीक तो है ना, सब ठीक तो है? तो उनको बाहरी होश आ गया, बोला नहीं नहीं सब ठीक हो गया है, गोपाल ने मेरा ऑफरिंग खा लिया है। उनकी बहुत इच्छा हो रही थी बताऊं कि अरे तुमको पता नहीं है, तुम्हारे घर में सबसे जो तुम सर्वोत्तम भगवान है कृष्ण भगवान, तुम्हारे जन्म घर में जन्म लिए। पर उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि निमाई ने बोला था बोलोगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारा। तो वो नाच रहा था। उस दिन से उस ब्राह्मण ने जगन्नाथपुरी नहीं, जगन्नाथपुरी नवद्वीप नहीं छोड़ा, वहीं पे रहता था, रोज आके निमाई के दर्शन करता था और वहां से निकल जाता था। तो ऐसे कई उन्होंने लीलाएं की निमाई ने। कृष्ण भगवान खुद ही हैं, वो भक्त के रूप में आते हैं हमें भक्ति सिखाने के लिए। कई सारी लीलाएं हैं, बताने के लिए हमारे पास टाइम कम है, पर जो जो मुख्य मुख्य लीलाएं थी जो बचपन में ली है उन्होंने, उसके बारे में मैंने बताया। तो उन्होंने सारा इंडिया घूम ले, वो साउथ इंडिया गए थे, पुरी गए थे। तो 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और दक्षिण यात्रा की 6 साल तक, और 18 साल तक वो जगन्नाथपुरी रहे। इसलिए जगन्नाथपुरी जो है इस कलियुग का वो धाम है। वहाँ पे हमने एक बार तो कम से कम जरूर जाना चाहिए। और वहाँ पे जो पूरी की यात्रा होती है वो हमने जगन्नाथ यात्रा देखनी चाहिए रोज, एक जन्म में एक बार तो कम से कम, है ना। और उसके बाद एक आध बार वो वृंदावन भी गए, और पूरे में उन्होंने दिखाया कि भक्ति कैसे करते हैं, और शुद्ध भक्त जो होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, कैसे वो आदान प्रदान करता है। तो ये सब कुछ चैतन्य चरितामृत करके एक किताब आती है,
उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ। तो जो जो भागवतम पढ़ रहे हैं, जब उनका खत्म हो जाएगा या 1-2 साल के बाद उनको इच्छा हो जाएगी तो चैतन्य चरितमृत पढ़ सकते हैं आप। उसमें बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने उनके लीलाएं बताए। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे विराम देंगे। आज एक्चुअली आप प्रार्थना कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि प्लीज प्लीज महाप्रभु, आप बहुत दयालु हैं। जगाए मदाई जैसे पापियों को भी उन्होंने आपने उद्धार किया है, तो मैं भी बहुत पापी हूँ, इतना पापी हूँ, इतना पापी हूँ कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो प्लीज प्लीज मुझे आपका जो मर्सी है, कृपा है, मुझे बरसाइए, क्योंकि जब बर्थडे किसी को होता है तो अच्छे से वो बरसी मिलती है। तो प्लीज प्लीज मुझे आपका मर्सी दीजिए ताकि मैं इस भौतिक जगत से निकल सकूं, इस कोरोना फरोना के चक्कर से निकल के भौतिक जगत से मैं आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकूं और मुझे शुद्ध भक्ति मिल जाए। ऐसे आप प्लीज प्रार्थना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? सॉरी, हम लोग थोड़े 10 मिनट ऊपर चले गए, ज्यादा टाइम लग गया। कोई प्रश्न? ओके, तो कोई प्रश्न है नहीं है तो हम ये भी विराम देंगे। वास्तविक प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी, ये चैतन्य महाप्रभु कुछ 500-600 साल पहले आए थे। यस। और ये जो जगन्नाथ की रथ यात्रा है वो कई सालों से चल रही है, लगभग 2000 साल से चल रही है। यस यस महाराज। तो मतलब वहाँ पुरी में, जगन्नाथपुरी में पहले से ही जगन्नाथ भगवान को मानते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु आने के बाद उन्होंने वहाँ पे क्या किया भक्ति का? उन्होंने वहाँ पे रह के भक्ति कैसे करते हैं उसका प्रसार किया। जैसे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है पर साल में एक बार होती है, पर वहाँ पे क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण खुद ही हैं, तो ये दिखाने के लिए जगन्नाथ खुद इस कलयुग के लिए जगन्नाथपुरी कितना महत्वपूर्ण है। वहाँ पे कई सारी लीलाएं की और उस लीलाएं से हम सीख सकते हैं कि भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे करते हैं। वो हमारे अपने आवर्तन से उन्होंने दिखाया कि भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है और कैसे भगवान का नाम लेना है, वो उन्होंने दिखाया। भक्त के रूप में उन्होंने दिखाया हमको, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए और वो ऊंचा हम जो स्थान है भक्ति का, प्रेम का स्थान है, वो हम हासिल कर सकें। तो अपने कार्यों से उन्होंने वो दिखाया। ठीक है। जगन्नाथपुर यात्रा बहुत सालों से चल रही है, लाखों सालों से चल रही है वैसे तो, पर 5000 साल पहले कृष्ण भगवान और राधा रानी कुरुक्षेत्र में आए थे। तब सारे जो गोपियां थी वो कृष्ण को के रथ को खींच रही थी, ये बोलने के लिए कि तुम हम चलो वापस वृंदावन, क्योंकि वो तब द्वारका में थे। तो उसको भी जगन्नाथ रथ यात्रा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है आशा माता जी। यस यस प्रभु जी। तो फिर वहां से वो यहाँ आ गए, उड़ीसा में आ गए, द्वारका में से। हाँ, मतलब उड़ीसा आए थे। पूर्व की तरफ से द्वारका, हाँ, वृंदावन द्वारका नहीं, यहाँ आ गए, पुरी में आ गए। नहीं, पुरी में नहीं थे, वो कुरुक्षेत्र में ही था। जो लीला मैं बता रहा हूँ, जब गोपियां खींच रही थी कृष्ण के रथ को, वो कुरुक्षेत्र की बात है। पर जगन्नाथ जी को रथ से खींचते हैं, वो लीला हमारी वहां होती है, पुरी में होती है। तो उसका वो कनेक्शन है। ओके, यस। और कोई जिज्ञासा, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभू जी. हरे कृष्ण. प्रभूजी, तुम्ही काल आपला अध्याय दुसराचं तुम्ही पाठवलंय ना रेसिटेशन, ते तुमच्या आवाजात नाहीये, कारण तुम्ही जे शिकवलेलं आहे ना ते थोडं सूर मध्ये आहे, मग थोडासा फरक वाटतो ते ऐकताना. जर तुम्ही तुमच्या आवाजात पाठवलं तर चालेल. ओके ओके, मी करतो. हरे कृष्ण. प्रश्न है कि जो हमने श्लोका सेकेंड चैप्टर का जो भेजा था कल भगवद गीता का, तो उसमें किसी और का आवाज है, तो वो ज्यादा मेरे से ज्यादा अच्छा है इसलिए मैंने भेजा था, बट माता जी की इच्छा है कि मेरे आवाज में मैं रिकॉर्ड करके भेजूं, तो मैं भेजता हूँ। ठीक है। और कोई प्रश्न है? तो कई भक्तों की इच्छा से हमने ये सेशन अभी रिकॉर्ड किया है, तो हम रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे ताकि किसी ने अगर मिस किया तो उसको आप सुन सकते हैं। हरे कृष्णा. वास्तुजी प्रभु ओके. तो वासुदेव प्रभु और रंग राधिका माता जी दोनों को तबीयत ठीक नहीं है, दोनों को बुखार है। तो हम सारे भक्तों से अनुरोध करेंगे कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं और वो जो सेवा कर रहे हैं हम सबके लिए वो वापस से करने लगे। तो सबसे अनुरोध है कि एक जब आप माला करेंगे कल सुबह तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यहीं पे विराम देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।